honorable guest on the dais, our resource person, Professor Madhukar Oike, Tirupudi College of Social Work, Principal Ma'am Dharmadhikari, webinar convener, Mr. Naresh Durve, Chairperson, Dr. Deepak Masram, and vibrant participants on today's webinar. To one and all, a very pleasant morning. The United Nations estimates that approximately 476 million indigenous people live in 19 different countries, speaking more than 4,000 of the world's 7,000 languages. The global communities begin to acknowledge that indigenous peoples hold vital ancestral language and extremely on how to adopt, immigrate, and reduce climate and disaster risks. However, the attitude of many nations to respect indigenous sovereignty and their rights threats their cultural survival. On 9th August 2021 is the 26th anniversary of World Indigenous People Day. The theme chosen of our webinar is Indigenous People, Languages and Their Problems. Languages plays a central role in the identity of indigenous communities. Today, about 7,000 languages, of which indigenous people speak the majority, are spoken worldwide, but scientists estimate that about half will no longer be spoken by the end of the century. Dear friends, a resource person will help us understand the problems that indigenous people face. Now I invite Gajbeh sir to welcome a resource person who is our estimate guest today. Sir, we are indeed honored to have you with us today. थैंक यू प्रभा। आज के नेशनल वेबिनार में जो हमें रिसोर्स पर्सन मार्गदर्शन करने वाले हैं हमारी महाविद्यालय के प्रोफेसर मधुकर जी उइके सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर को इंट्रोड्यूस करते हुए। सर ने अपना क्वालिफिकेशन एज ए एमए इन सोशियोलॉजी एंड बिलीव एक RTMU नागपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। 1982 से 1986 तक सर तिरुपुड़ी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क में सहायक ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत थे। 1986 से सर ग्रंथपाल पद पर कार्यरत थे 2016 तक, और 2016 के बाद सर इस पद से रिटायर्ड हुए हैं। ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन इस संगठन के सर प्रेसिडेंट के रूप में आज कार्यरत है 2016 से। उसके पहले 1992 से 2016 तक सर ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशन के महासचिव इस पद पर कार्यरत थे। इसकी सदस्य संख्या आसपास 4,000 लोगों की आसपास सदस्य संख्या है। सर नूटा यह संगठन के मेंबर है तथा मासवे इस संगठन के लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। उसके साथ ही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ग्रंथपाल संगठन के सर सदस्य हैं। विशेषतः समाज कार्य क्षेत्र में ग्रंथपाल यह पोस्ट के लिए UGC के दायरे से UGC अनुसार वेतन श्रेणी प्राप्त हो, इसके लिए सर ने अथक प्रयत्न किए हुए हैं। साथ ही समाज कार्य क्षेत्र में ग्रंथपाल यह पद को टीचिंग जैसे ही 60 ईयर्स तक रिटायरमेंट का एज हो, इसके लिए भी सर ने कार्य किया है।
उसके लिए नागपुर हाईकोर्ट में सर ने याचिका दाखिल की थी। साथ ही तिरपुरे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क में सर ने 2016 में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था जिसका विषय था राष्ट्रीय आदिवासी धोरण। साथ ही 2013 में शेड्यूल्ड ट्राइब यह विषय पर नेशनल सेमिनार आयोजित करने में सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही आदिवासी क्षेत्र से संबंधित अलग अलग संगठनाओं में सर देश भर में कार्य करते हैं। आदिवासी मूल निवासी इसके संदर्भ में जो भी समस्याएं, जो भी व्यक्तियों को समस्या आती है उसके अधिकारों के लिए सर हमेशा तैयार होते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व का मैं यहाँ पर तिरपुरे महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ और उनके मार्गदर्शन हेतु उन्हें आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर मधुकर जी उइके सर। Thank you, sir. Now I invite Dr. Deepak Masram to facilitate Professor Madhukar Oike by shawl and bouquet. हमारा सौभाग्य है कि उनके शिक्षा Now I invite the sir to introduce our Dr. Deepak Masram. थैंक यू। आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मसराम सर। Dr. Deepak Masram sir, he had done his MSW degree and MPhil and PhD in social work. He is an associate professor and a recognized PG teacher of Tirupati College of Social Work, Nagpur. He having 30 years of teaching experience in community development, community organization, urban, rural and tribal development. He has to credit his credit 4 research paper as research director and 5 research projects as assistant research director, which were sponsored by Planning Commissioner, Ministry of HRD, Ministry of Women and Child Development, Government of India, and also ICSSR and World Bank. Sir has published more than 20 research articles in the national and international journal and books also. He was a member of Senate at RTMU Nagpur University and academic council member of YCMU Nashik and was a planning board member at Datta Meghe Institute of Medical Science deemed to be University Nagpur. Sir has also written 3 books in his credit, namely Urban Development in India, Community Organization and Development in India, Social Policy Planning and Development in India. He is a member of Board of Study, Social Work at RTMU Nagpur University and as well as member of Board of Studies at Sant Gadge Baba Amravati University. Thank you sir for chairing this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Abhishek to welcome Dr. Deepak Masram by presenting a sampling. Thank you, Abhishek. Thank you very much.
I invite Mr. Naresh Purve to speak few words about today's. सभी को आज इस 9 अगस्त मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में सभी को धन्यवाद और सभी का इस वेबिनार में स्वागत करते हैं। आज के इस वेबिनार के चेयरपर्सन अध्यक्ष इस नाते हमारे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दीपक मसराम सर, और उसी प्रकार इस वेबिनार के लिए जो प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे साथ में सम्मिलित है प्राध्यापक मधुकर उइके सर, जो इसी महाविद्यालय में विगत कई सालों से एज ए लाइब्रेरियन करके काम किए हैं। उन्हें बहुत सारा अनुभव है और उस अनुभव को आधार में रखते हुए हमने उन्हें यहाँ एज ए प्रमुख वक्ता के रूप में बुलाया, ताकि उनका जो भी नॉलेज है हमारे विद्यार्थी, हमारे सहपाठी, हमारे जो भी इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पंजीकरण किया है, उन सभी को सभी लोग उनका लाभान्वित होगी। आज हम ये देखते हैं कि 9 अगस्त ये जो दिन है, खास करके अगर हम देखते हैं तो यूनो ने जो 9 अगस्त 1994 में एक जो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे के नाम से प्रचलित किया गया है या उसे जाना जाता है, उसे जैसे कहा जाए कि विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें अगर हम ये देखते हैं कि SC, ST, OBC, VJNT, DNT ये सभी लोगों की अगर हम और कुछ जो धर्म परिवर्तित हुए उनका DNA के आधार पर अगर देखते हैं तो ये सभी लोग आज भी मूल निवासी हैं। और इसको आज हम जो एक आदिवासी दिवस इसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। हर साल का एक नया थीम होता है। इसके पहले का अगर हम देखते हैं एजुकेशन और हेल्थ था, उसके पहले यह हर साल का एक नया थीम होता है। इस साल जो एक थीम रखा गया है कि वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स लैंग्वेज, और ये जो थीम है ये हर थीम में इसलिए भी रखा जाता है कि कम से कम इस बहाने से, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग कम से कम अवेयर हो, क्योंकि जो एक आर्टिकल्स अलग अलग और सबको जो समानता का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत सभी को अपने वो अधिकार जीना व या जी सकते हैं, वो सारी कोशिश की गई है। उसके बेस पर इसके आगे बहुत सारी जानकारी हमारे उनके साथ देंगे ही। तो अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो पर्यावरण की बात करते हैं और बाकी के आज तक जो जंगल और बाकी जो सारी चीज़ें सुरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। एक बात कहना चाहूँगा कि आदिवासी सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है, जंगल सुरक्षित है तो पर्यावरण सुरक्षित है, और पर्यावरण सुरक्षित है तो विश्व सुरक्षित है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो इस पर जो एक आदिवासी या मूल निवासी की महत्ता हमें पता चलती है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ रुकता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Professor Madhukar Uike to share his thoughts on today's theme. आज विश्व मूल निवासी दिन आप सभी लोगों को मैं
वेबिनार में उपस्थित सभी को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। 1994 में इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का एक आयोजन किया था। तब से भारतवर्ष में भी ये विश्व आदिवासी दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, मुझे जो थीम दी है आदिवासी भाषा, उस संदर्भ में मैं बोलने के पहले थोड़े से कुछ बिंदुओं के ऊपर में भी आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के बाद में तत्कालीन भारत सरकार ने भारत में आदिवासी नहीं है ऐसा रिपोर्ट यूनो को भेजा गया था। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और तब से आदिवासी समाज में काम करने वाले जो कुछ संगठन हैं, उस संगठन ने यूनो में जाके इस सब चीज वहाँ के लोगों को बताने के बाद में इस लड़ाई को कम से कम 7 से 8 साल लगे। तब कहीं भारत में विश्व आदिवासी दिन मनाने का एक चालू हो गया है। लेकिन उसके बाद में भी हर समाज का एक उसकी संस्कृति होती है, उसकी रीति रिवाज होती है, और हर समाज के कुछ ना कुछ उनके फेस्टिवल के लिए उन कुछ हॉलीडेज भी डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र के भारत सरकार ने भी इस संदर्भ में आज तक कोई ही पहल की नहीं। महाराष्ट्र में आदिवासियों की लोक संख्या टोटल पॉपुलेशन से 9.35%। और इतने बड़े लोक समुदाय रहने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सीमित दायरे में इस विश्व आदिवासी विश्व दिवस को मनाने का उन्होंने संकल्प किया। पहले आदिवासी ऑफिस ने इस संदर्भ में छोटी सी एक मीटिंग लेके, चर्चा सत्र भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, एक छोटा सा कार्यक्रम लेके विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था। और इसमें फिर बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया कि भाई इसको व्यापक रूप देना चाहिए। तब कहीं तुम जैसा इस साल में देखिए कि राजस्थान सरकार ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है, छुट्टी अवकाश डिक्लेयर की है पूरे राज्य में आज के दिन। मध्य प्रदेश सरकार ने जो उनके ट्राइबल एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स, उस डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ उन्होंने अवकाश घोषित किए हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नहीं घोषित किए। 9.35 पॉपुलेशन रहने के बावजूद भी। लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है भविष्य में, इस संदर्भ में अच्छी घटनाएं घटेंगी ऐसा हमें आशा है। हम लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। दोस्तों, आपको एक कल्पना होगी कि आदिवासी यह समाज का टोटल जागतिक आदिवासी में से, यानी जो वर्ल्ड में आदिवासी है उसमें से 30% आदिवासी भारत में रहता है। 30% आदिवासी भारत में रहते। इतने बड़े लोक संख्या रहने के बावजूद भी इस समाज का जो मान सम्मान होना चाहिए था, इस समाज का जिस ढंग से विकास होना चाहिए था, उस हो नहीं रहा है। और इसके लिए बहुत सारे संगठनें काम कर रही है। यदि आदिवासी भाषा के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा तो महाराष्ट्र में 45 शेड्यूल टाइप्स है।
पहले 47 थे, अभी 45 हो गए। और उसके यदि हमने उपजमातियाँ पकड़े तो 135 तक टोटल आदिवासियों की ट्राइब्स की संख्या यानी जमातियाँ आती है। जाति नहीं बोलते हम उसको, हम जमाती बोलते हैं, ये आती है। और पूरे भारतवर्ष में 450 के ऊपर में ट्राइब्स रहते हैं। उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उतनी ही भाषाएं हैं। और ये भाषा रहने के बावजूद भी आज हमारा आदिवासी समाज में जिस ढंग से शैक्षणिक आर्थिक विकास होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? ट्राइबल्स ये रहते कहाँ पे हैं? ट्राइबल्स रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों में और दरियों में। इसलिए उनका विकास का जो साधन है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। और भाषा, आदिवासियों की जो भाषा है वो भाषा बाकी के लोगों को समझ में नहीं आने की वजह से भी जो हम भाषा का जो अभाव बोलते हैं उसके वजह से भी ये चीज़ होती नहीं है। और इस वजह से ट्राइबल का जो शैक्षणिक विकास होना चाहिए था हो नहीं रहा है। अभी कुछ आपको दिखने में आ रहा होगा कि भारतवर्ष में अलग अलग जगह में ये चर्चा चालू है, संसद में डिबेट हो रहा है कि आदिवासी भाषाओं को अनुसूची के 8वें भाग में डालना चाहिए। आज संथाली और बोडो ये दो ही भाषाएं हैं कि जो 8वें अनुसूची में है। पिछले साल 2019 में संसद में एक क्वेश्चन पूछा गया था खासदार नेताम के माध्यम से। उन्होंने पूछा कि भाई गोंडी भाषा और गोंडी भाषाओं के साथ में ऐसे कितने भाषाओं का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आया है और उनको कितने भाषाओं को तुम 8वें अनुसूची में जो भाषा की अनुसूची है उसमें डाल रहे हैं। एक विचित्र उत्तर वहां जब वहां के जो मिनिस्टर थे, जिसको मानव संसाधन मिनिस्टर राज्य मंत्री हमारे चंद्रपुर के ही थे, हंसराज अहिर साहब, उन्होंने दिए थे उसको। बहुत सारे भाषाओं को हमको वहां पे शामिल करने के लिए, समावेश करने के लिए प्रपोजल आए हैं। और सभी भाषाओं को तो हम कर नहीं सकते हैं, सभी भाषाओं के लिए हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये भाषाएं बदलती रहती है, भाषाएं चेंज होती रहती है। इसलिए कोई ही भाषा में कोई भी यानी अनुसूचित जमातियों की भाषा यानी आदिवासियों की भाषा के बारे में अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया कि उनको भाषा का जो 8वीं अनुसूची उसमें शामिल करने के बारे में। दोस्तों, एक बढ़िया अचंभा वाली बात यह है, संस्कृत भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? 50,000 भी लोग नहीं होंगे, 50,000 भी लोग नहीं है। और करोड़ों लोग भाषा, आदिवासी भाषा बोलने वाले हैं। आज भारतवर्ष में 29 ऐसी भाषाएं हैं कि जो बहुत बड़े पैमाने में ट्राइबल की भाषा बोली जाती है, जैसे गोंडी है, हलवा है, भिल्ली भाषा है। ऐसे अनेक भाषाएं हैं जब बोले जाते हैं। जब हमने गोंडी भाषा का यदि हम उदाहरण लें तो सबसे ज़्यादा भाषा भारतवर्ष में यदि कोई सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है तो गोंडी भाषा है। करोड़ों में वो भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गया है, तेलंगाना हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है, आंध्रा हो गया है। ऐसे कई स्टेट है कि जहाँ ये गोंडी भाषा बोली जाती है, लेकिन उस भाषा को तुम अनुसूची में नहीं ले रहे हैं। इसके लिए भी बहुत सारा आंदोलन अभी चालू हुआ है, चल रहा है, कई सालों से चल रहा है कि भी गोंडी भाषा को आप अनुसूची में लीजिए। दूसरा दोस्तों, गोंडी भाषा जो आपने देखे होंगे
कि गूगल के माध्यम से बहुत सालों से डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके आदिवासी भाषाओं को लिपि है ये उन्होंने क्या है ढूंढ के निकाला, शोध किया है। जिस राजाओं ने आपको पहले कोई भी राजघराने ने जितने साल राज्य नहीं किया, ना मराठों का हुआ है, ना सिखों का हुआ है, ना कोई समुदाय का राज हुआ है, उतना राज 1740 साल गोंडवाना के गोंड राजाओं ने राज किया है इस देश में। यदि 1700 साल यदि वो राज करते हैं तो उसकी भाषा होना चाहिए। कोई भी राज करेगा तो उसकी भाषा तो लैंग्वेज तो होना ही चाहिए ना। विदाउट लैंग्वेज से हो नहीं सकता है। आज उनके प्रयास की वजह से गूगल ने भी गोंडी लिपि को क्लासिफाइड किया है। न्यूजीलैंड के ग्रुप ने भी उसको क्लासिफाइड किया है। आज गोंडी भाषा या कोई भी आदिवासी यदि भाषा अपन देखते हैं आज के इसमें, तो देवनागरी लिपि में बराबर है। यदि गोंडी लिपि है तो गोंडी लिपि में आजकल क्यों नहीं लिखा जाता है? मेरे पास में किताब है गोंडी लिपि का, और कहीं ऐसे शिलालेख मिले हैं कि जहाँ पे गोंडी के शब्द आए हैं। उसका अभी जो हमारे नवशिक्षित जो लोग हैं संशोधन करता है, वो इसके लिए अभी शोध कार्य चालू किए हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का आपने देखा होगा, वहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं, वहाँ पे जो चित्रलिपि मिली है, मुझे आनंद होता है कि वो चित्रलिपि पढ़ने के लिए डॉक्टर मोतीराम जी कंगाले के पास में उनको आना पड़ा। न्यूजीलैंड के शोधकर्ता थे, पूरे भारतवर्ष में घूमे, कहीं नहीं मिले वो लिपि को पढ़ने वाला, कहीं नहीं मिला। चित्रलिपि ये आदिवासी भाषा से मिली हुई है। चित्रलिपि से ही आदिवासी भाषा पढ़ी भी जाती है। ये संशोधन उन्होंने किया। और नागपुर में गोंडवाना विकास भवन है, गोंडवाना भवन है, वहाँ पे मैं भी था। उनके जो 3-4 लोग जो आए थे, उनके साथ में वो गोंडी लिपि वहाँ पढ़ाएगी, पहले पढ़ी गई, और उन लोगों का भी समाधान हुआ गोंडी लिपि के बारे में। इस तरह से गोंडी लिपि या आदिवासी भाषा की लिपि, जैसे हल्बी भाषा की लिपि, भिल्ल भाषा की बहुत बड़ी लिपि है, लेकिन बाहर नहीं आ रही है। काकरी भाषा उनकी भी लिपि है, लेकिन वो लिपि जब तक बाहर नहीं आएंगी, जब तक लोगों के सामने आएंगी नहीं, तब तक लोगों को उसको पढ़ने नहीं होगा। मोतीराम जी कंगाले साहब ने इस बारे में, यानी जब तक हमारी भाषा में हमको एजुकेशन मिलेगा नहीं। आप यदि उधर माड़िया में एरिया में जाइए, गढ़चुल के एरिया में, गोंदिया के एरिया में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, जो पॉपुलेशन है गोंडी शब्द बोलने वाले, गोंडी लैंग्वेज बोलने वाले, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो देवनागरी में जो बात होती है बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको समझता नहीं। तो हमारा कई सालों से भी कहना था कि ठीक है ना भाई, अभी तुम गोंडी भाषा को तुम उसको देवनागरी में तो बना पहले उसकी डिक्शनरी, और डिक्शनरी बना के उस ढंग से हमारे बच्चों को यदि पढ़ाया गया है, तो जो पढ़ाने का जो माध्यम है आजकल, पढ़ाने का माध्यम वो मराठी हमारे बच्चों को समझती नहीं, तो पढ़ेगा कैसा बच्चे? इसलिए कातकरी भाषा हो गई, भिल्ल भाषा हो गई, ठाकर भाषा हो गई। इन सभी भाषाओं में अभी क्लास 1 से 4 तक यही भाषा में उनको किताबें उपलब्ध हुई है, और उस किताब की वजह से वो लोग पढ़ भी रहे हैं। और इसी वजह से ये
7-8 साल से देखिए कि ट्राइबल का एजुकेशन का जो प्राइमरी शिक्षण का जो परसेंटेज वो भी बढ़ रहा है, क्यों तो उनके खुद के लैंग्वेज में उनको पढ़ने को मिल रहा है और गवर्नमेंट ने भी उसको किताबें उपलब्ध कर दी है। इस ढंग से यदि होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में जो भी भाषा है, वे आज के लोकमत में आ गया कि कई आदिवासी भाषा लुप्त हो रही है, कई आदिवासी भाषाएं लुप्त हो रही है, कई आदिवासी जमात भी लुप्त हो गई। वो नाम के समाज जो थी ऑस्ट्रेलिया में तो पूरी लुप्त हो गई है। अंडमान निकोबार की जो जारवा कम्युनिटी थी जो हजारों में थी, अभी सैकड़ों में भी नहीं है। ये समाज को बचाने के लिए, इस समाज की भाषा बचाने के लिए भी गवर्नमेंट को तो काम करना ही करना है, उसके साथ साथ में भी हमारे जो नवशिक्षित लोग हैं, ये नवशिक्षित लोगों का भी अभी काम है कि भी इसको शोध प्रबंध के माध्यम से लोगों के सामने उसको लाना चाहिए। और जो कुछ भी ये घटनाएं होती है, अभी आदिवासी भाषा का यदि सबसे पहले उपयोग हुआ होगा, यानी जिसने वापरा होगा, वो झारखंड में हुआ 1930 में। आदिवासी समाज का, आदिवासी समाज का जो शब्द वापरा गया है 1930 में। तब से 1930 से आदिवासी शब्द प्रचलित हो रहा है, उसके पहले नहीं था लेकिन बहुत कम में था, लेकिन आदिवासी शब्द का प्रचलन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है 1930 से। जयपाल सिंह का नाम यदि आपने सुना होगा, झारखंड के निवासी है। भारत की जो घटना बनाई गई है, भारत के घटना समिति के वो एक सदस्य थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उस टाइम के वो पदवीधर थे। उन्होंने आदिवासियों को सांस्कृतिक मूल्य बताने के लिए उनका उस ढंग से उनको एकत्र करने का जो कार्यक्रम उन्होंने किए, वो जयपाल सिंह रेड्डी जी सबसे पहले, रेड्डी सिंह जयपाल सिंह जी ने किए। एक ढंग से धीरे धीरे जो भी कुछ काम होता रहा गया है। दुख तो इस बात का भी है कि जब घटना समिति में ये बात सामने डिस्कशन होना ही चाहिए था, हर भाषाओं के बारे में डिस्कशन हुआ। जिस आदिवासी समाज उस टाइम में 8.5% के ऊपर में था, उस समाज की भाषाओं के बारे में भी ना घटना समिति के किसी सदस्य ने वहां पे कुछ उल्लेख किया, ना कुछ किया। अभी भी वही बात है आदिवासी समाज की भाषा की। और ये जब होने के लिए जो हमारा शिक्षित वर्ग है, वो शिक्षित वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए था, उस टाइम पे नहीं था। दोस्तों, एक मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं 1965-1967 में महाराष्ट्र में आदिवासी समाज कल्याण एक विभाग था, समाज कल्याण। उस समाज कल्याण के विभाग के अंतर्गत ही आदिवासी विकास का जो भी योजना है, वो योजनाएं के वहाँ पे कार्यान्वित होती थी। जब काम करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको भाषाओं का जब प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन माड़िया में जाएंगे तो वो माड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा करना चाहिए। तो बोधनकर नाम के एक डिप्टी डायरेक्टर थे उस टाइम में, उन्होंने एक डिक्शनरी बनाया, यानी कामकाज सुलभ होना चाहिए, हमारे अधिकारी को भी समझना चाहिए। और हमारी भाषा तो इनको नहीं समझनी, लेकिन उन्होंने उस टाइम में डिक्शनरी बनाया 1965-67 में, डॉक्टर बोधनकर जी ने। ऐसा धीरे धीरे ये आदिवासी भाषाओं का धीरे धीरे जो विकास होते गया है। गोंडी भाषा वैसे बहुत पुरातन है।
आपको इतिहास के पन्ने में भी मिलेंगे, उसके उल्लेख मिलेगा। जैसे हीरालाल रसेल की किताब लीजिए, एल्विन कैनिंघम की लीजिए, डॉक्टर जी.एस. ध्रुवे की किताब देखिए, सोहनलाल चूड़ामन की किताब देखिए, और कहीं ऐसे जो लेखक है, समाजशास्त्री लेखक बोलेंगे अपन, उन्होंने अपने किताबों में, अपने शोध प्रबंधन में गोंडी भाषा का उल्लेख किया है। आज गोंडी भाषा का उल्लेख भी तुमको मिलेगा आदिवासी ऑफ आंध्र प्रदेश, द राजगोंड ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोया लैंग्वेज। कोया लैंग्वेज, जो कोया लैंग्वेज बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोया लैंग्वेज है, कोया लैंग्वेज मीन्स गोंडी लैंग्वेज। कोया लैंग्वेज यही गोंडी लैंग्वेज है। कोयतुर जो बोलते हैं वो गोंड को ही कोयतुर भी बोला जाता है। ऐसे अनेक किताब, माड़िया गोंड ऑफ बस्तर, कई लोगों ने इस किताब लिखने के बावजूद उस किताब में भी गोंडी भाषाओं का उल्लेख आया है। ऐसी एक पुरातन भाषा, कई लोगों ने भी इसमें उल्लेख भी किया होगा। आज संस्कृत भाषा कितनी पुरानी हो गई इसको तो मुझे इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन गोंडी भाषा का इतिहास कम से कम 10,000 साल पूर्व का है। और इस इतिहास को तब से अभी तक बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आदिवासी समाज का इतिहास को भी अलग अलग ढंग से, जैसे वारू सोनोने जी हो गए, नेताजी राजगढ़कर हो गए, हमारे उषा किरण आत्राम हो गए, डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी हो गए, मनसाराम जी कुमरे हो गए, अशोक कुर्मते, प्रकाश सलामे, ऐसे कई लेखक ऐसे हैं कि उन्होंने शोध करके इस भाषा का अभ्यास करने के बाद में कई सारी पुस्तकें, कई सारा लिटरेचर उन्होंने इस आदिवासी समाज को, गोंडियन समाज को उपलब्ध भी करके दिया है। और आज हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि कहीं ना कहीं हमारा नवशिक्षित वर्ग भी अभी ये आदिवासी भाषाओं के बारे में भी एक शोध करना चालू कर दिए है, किताबें लिखना चालू हो गए हैं। अलग अलग ढंग से उन्होंने इस आदिवासी भाषाओं का, यानी गोंडी भाषा बोले तो 7-8 राज्यों में भी है। आज भिल्ली भाषा है, भिल्ली भाषा राजस्थान में, गुजरात में बोली जाती है। ऐसे कई भाषाएं हैं, अलग अलग स्टेट में उस ढंग से उस भाषाओं के बारे में प्रकल्प भी गवर्नमेंट की तरफ से चालू हो गए हैं, अलग अलग किताबें लिखना चालू हो गया है, और अलग अलग सेमिनार से, चर्चा सत्र से इस संदर्भ में भी बातें हो रही है। आदिवासी भाषा एक ऐसी भाषा है, आप बोलते हैं कि आदिवासी, आप सभी समाजकार महाविद्यालय के हम विद्यार्थी है, कि आदिवासी भाषा आदिवासी समाज की एक संस्कृति है, एक चाली रीति है, उनकी प्रथाएं हैं, उनकी भाषाएं हैं। यदि हम इस सभी के ऊपर में, यदि ये सभी छोटे छोटे बिंदुओं पे यदि हमने अपना ध्यान दिए तो अपने को देखने को मिलेगा कि जन्म से तो मरने तक आदिवासी जो भी संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में उनकी चाली रीति बताई गई। ठीक है, आदिवासी का कहीं ना कहीं उस टाइम से लिखित स्वरूप में कुछ नहीं मिलता था, लेकिन गाने हैं, उनके पाटा है, उनके नृत्य है, अलग अलग उनके जो कार्यक्रम होते, उस ढंग से उनकी संस्कृति, उस ढंग से उनके चाली रीतियाँ अभी तक जीवित है। दोस्तों, आदिवासियों की भाषाओं के बारे में यदि बहुत सारे लोगों ने, बड़े दुख की बात है
कि आज हमारा जो भी इतिहास है, हमारा इतिहास, आदिवासियों का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास बहुत ही गलत ढंग से लिखा गया है। हमारा जो भी इतिहास है वो यदि सच्चे मायने में यदि लिखने में आया होता है, हमारी संस्कृति का उन्होंने तोड़फोड़ कर डाली। हमारे संस्कार जो है, जिसको हम गोटोल बोलते हैं, उसके चित्र इन्होंने बाकी के लोगों ने कैसा किया है ये आप लोग देखिए। हमारा पहराव, उस टाइम का पहराव कैसा था, उस टाइम के पहराव के लिए तुमने क्या बोले? इन आधुनिक लेखकों ने जो आदिवासियों के ऊपर में जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है वो बहुत ही गलत ढंग से किया है। हमारा जो राजाओं का इतिहास है वो भी उन्होंने बहुत गलत ढंग से लिखा है। जिस नगरी में हम बैठे हैं, ये नगरी किसने बनाया भाई? किसने बनाया? राजा भक्त बुलंद शाह ने, गोंड राजा ने बनाया ये नगरी। 300 साल पुराने हो गए हैं। 300 साल से ऊपर में इस नगरी को उस टाइम में बसाया गया। अभी उस टाइम में बसाने के बाद में भी लोग क्या बोलते हैं इस नगरी को? राजा भोसले ने बनाया। अरे राजा भोसले कब आए भैया वहां पे? कब बनाया उन्होंने? कब बनाया? यानी हमारा इतिहास, हमारे किले का इतिहास, हमारी संस्कृतियों का इतिहास, हमने बसाए हुए शहरों का इतिहास, आज हम नागपुर का शुक्रवार तालाब मालूम है आप सब लोगों को? फुटाला तालाब मालूम है सब लोगों? किसने बनाया? फुटावा, वो शुक्रवार तालाब तुम जुम्मा तालाब नाम दे दिए। फुटाला तालाब किसने बांधा बोलते भैया? तुम भोसले साहब ने बांधा बोलते। अरे लेकिन इतिहास क्या है? इतिहास भी देखना चाहिए ना। यानी हमारा इतिहास को भी कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के लिखने में आया है। आज के पेपर में भी मैंने पढ़ा है, बड़ा दुख इस बात का है कि वनवासी कल्याण आश्रम जो है, आप सबको मालूम है, वनवासी कल्याण आश्रम जो आदिवासी समाज में काम करता है, क्या लिखा आज के पेपर में उन्होंने, मरकाम साहब ने क्या लिखा? आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिन नहीं मनाना चाहिए। क्यों रे भैया? क्या क्या है? तो हमने क्या मनाना चाहिए? हमने हिंदू विश्व दिन मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? क्या मनाना चाहिए? यदि ऐसे आदिवासी समाज के लिए काम करने वाले लोग यदि ऐसे बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम तो उसका निषेध ही करने वाले हैं। कहीं हमने लिख भी डाला, मैं सवेरे पढ़ने के बाद में मैंने लिख डाला उसके ऊपर में। आदिवासियों की संस्कृति नष्ट करने के लिए उस पर हिंदू संस्कृति लादने के भी कार्यक्रम चालू हो गए। आदिवासी हिंदू है ये भी चालू है। अभी आपने देखा होगा धर्म कोड की आदिवासियों की जो डिमांड है कई दिनों से चल रही है, कई दिनों से चल रही है। हम निसर्गवादी है। ट्राइबल क्या है? ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना सिख है। हम निसर्गवादी है। हमारा धर्म निसर्ग है। हम निसर्ग से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति, हमारे प्रथा निसर्ग से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको तुम आदिवासी धर्म बोलिए, शेड्यूल ट्राइब धर्म बोलिए, निसर्ग धर्म बोलिए, लेकिन हमको कहीं ना कहीं तो तुम आइडेंटिफाई कीजिए ना। आज हिंदू धर्म के सेंसस में हमको आदिवासियों को डाल रहे हो, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमारा धर्म अलग है, हमारा सब अलग है। इसलिए
हमारा अलग से धर्मकोड बन रहे हैं। कई सालों से हमारी मूवमेंट चल रही है, कई सालों से। जब से मैं त्रिपुरा कॉलेज में काम कर रहा हूँ, 1982 से गजबे सर ने बताया, तो कम से कम 20-22 साल हो गए उस मूवमेंट को लड़ रहे। मान नहीं रही, गवर्नमेंट मान नहीं रही है। आज नहीं कल मानेंगे, संघर्ष से करेंगे तो जीतेंगे, ये हमारा नारा है। संघर्ष करना भी हमारा काम है, हमारे हक है, हमारी न्याय हमको यदि प्राप्त कर लेना है तो उसलिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी भाषाएं है या हमारी जो भी संस्कृति है, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भाषा जिंदी रही तो समाज जिंदा रहेगा, हमारा इतिहास जिंदा रहेगा तो हमारा आदिवासी आदमी भी जिंदे रहेंगे। जब तक हम हमारे इतिहास पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे भाषा पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम हमारा जो डेवलपमेंट का है, ये है, हम डेवलपमेंट कर नहीं सके। मैं क्या हूँ ये जब तक मुझे मालूम नहीं होगा तब तक मैं लड़ नहीं सकूँगा समाज के साथ। इसलिए हमारा एक जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट हम लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आदरणीय प्राचार्य, कार्यकारी प्राचार्य साहब मसराम साहब है, हमारे डॉक्टर कपिराज सर है, उनकी भी पीएचडी गोंडी धर्म के ऊपर में ही है, गोंडी भाषा के ऊपर में उनकी पीएचडी है। हम बहुत घूमते थे हम बहुत लिटरेचर जमा किए हमने, उनके किताबों में मेरा नाम है। गजबे सर है, दुर्वे सर है, होंगे सर है, बाद में एक आगे दिगामर राव, ये सभी हमारे सहकारी मित्र हैं। आपने मुझे यहाँ पे भाषा के बारे में जो कुछ अल्पसा जो मेरा ज्ञान था वो आपको बताने की मैंने कोशिश की है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को मैं जय सेवा कहता हूँ, जय आदिवासी कहता हूँ, जय जोहार कहता हूँ, और अपने 2 शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपने हमें आदिवासियों की महत्व बताई, उनकी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दिया। आपने हमें गोंडी भाषा का विस्तृत रूप से समझाया। हमें आपने उनके रहन सहन एवं शिक्षा का भी ज्ञान दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डियर फ्रेंड्स, this is now the time to ask questions, clarifications, or clear your doubts. We have 5 minutes at our disposal, so feel free to begin. सभी सहभागी से अनुरोध है कि उनको अगर कोई डाउट्स है, कोई सवाल है आज के इस वक्तव्य से संबंधित या भाषा से संबंधित, तो कृपया कर आपके जो भी सवाल है वो आप कर सकते हैं। आदिवासी संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था है कि जिनका काम ही है संशोधन करना है। तो इस TRTI के माध्यम से अब तक यदि आपके नॉलेज में होगा कि भाषा के ऊपर
इतने सालों में कुछ संशोधन हुआ है या तो इसके ऊपर कुछ काम हुआ है महाराष्ट्र शासन के द्वारा? महाराष्ट्र शासन का जो आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण विभाग पुणे में है, उन्होंने भाषाओं का, आदिवासी भाषाओं का प्रकल्प में काम करना चालू कर दिए और उसका यही परिणाम है कि अलग अलग महाराष्ट्र में जो अलग अलग भाषाएं हैं आदिवासियों की, उसमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक जो किताब बच्चों के लिए निकाला है, उनका भी वो प्रकल्प है। इस वजह उन्होंने इस विषय पे काम करना चालू कर दिए और उसका एक अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चों एजुकेशन के लिए, शिक्षा लेने के लिए भी अभी सामने आ रहे हैं, इसलिए कि जो भाषा का अभाव था, एजुकेशन लेने में जो भाषा का अभाव था, वो भाषा का अभाव कम होने के वजह से भी, यानी दूर होने की वजह से बच्चों का रुचि बढ़ गई है एजुकेशन। वो प्रकल्प अभी भी चल रहा है? वो प्रकल्प अभी भी चल रहा है। आपके मालूमात के लिए अभी इस साल ही उन्होंने माड़िया के लिए किताबें बना के बच्चों के लिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की, आश्रम स्कूल के बच्चों। और किसी के पास यदि क्वेश्चन है तो पुट फॉरवर्ड। हेलो ध्रुवे सर। सर ॲक्च्युली माझा मी मराठी भाषा यूज करतोय सर। हाँ चालेल चालेल। तर ॲक्च्युली सर माझा एक क्वेश्चन होता की म्हणजे आज शिक्षण पद्धती आहे सर, आता सरांनी भाषेवर आपल्याला त्या आदिवासी लोकांचे जे आदिवासी बांधवांच्या भाषेवर आपल्याला भाष्य केलेलं आहे। तर मला जस्ट एक क्वेश्चन पडलं सर आपल्या शैक्षणिक याच्यामधनं की आज आपल्या मराठी शाळा म्हणजे बंद करण्याच्या ह्याच्यावर आहे, तर आपण आपल्या भाषेला म्हणजे त्या सूचीमध्ये अनुसूची 8 मध्ये जर मान्यता भेटली ना आपल्या म्हणजे आदिवासी बांधवांची भाषा जर प्रगत म्हणजे त्या याच्यात आली आणि शाळा भेटली, तर त्या दृष्टिकोनातून तो विकास होईल का सर? म्हणजे शाळेसंदर्भात म्हणजे आज आपल्या मराठी शाळा बंद होण्याच्या याच्यावर आहेत मार्गावर, आज सीबीएसईला महत्व प्राप्त झालेलं आहे, तर आपण जे भाषा आपण आणलाय प्रगत आणि आपल्या आदिवासी बांधवांना त्या भाषेअंतर्गत म्हणजे आदिवासी भाषेअंतर्गत आपण जर शिक्षण दिलं तर त्यांचं म्हणजे समोर म्हणजे भवितव्य सुखभा राहील का सर? माझा हा एक क्वेश्चन होता तुमच्या अनुभवात ना सर। सर नमस्कार सर। बोले सर, हो सर। आपणास कल्पना असेल की आदिवासी समाज हा अजूनही फार मोठ्या प्रमाणामध्ये खेडे विभागामध्ये राहतो आहे, अजूनही तो जंगल खोऱ्यामध्ये राहतो आहे आणि आदिवासीच्या ज्या शाळा आहेत त्या सुद्धा अत्यंत दुर्मिळ भागामध्ये आहे आणि तिथली ज्या भाषेचा जो माध्यम असेल, तिथले जे बोलचाल असेल, तिथले जे काही व्यवहार असेल, हे सगळे व्यवहार त्यांच्या तेवढ्या त्या लोकल भाषेमध्ये आहे, म्हणजे गोंडी भाषेमध्ये आहे। हो सर। ते फक्त गोंडीच नाही, म्हणजे आदिवासी समाज नाही, तर अनेक असा समाज आहे जो समाज त्या त्या गावामध्ये बहुतांश याच्यामध्ये गोंडी बोलतो आहे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना जर दुसऱ्या भाषेमध्ये शिकवलं
जसं आपण माडिया भाषेची घेतली किंवा कातकरी भाषा घेतली, त्यांना मराठी भाषा येतच नाही, मग त्याचं शिक्षण कसं व्हायचं, शिकायचा कसा त्यांनी? मग जेव्हा हे सगळं शासनाच्या समाजकार्यकर्त्यांच्या लोकांच्या लक्षात आलं की नाही बा भाषेमध्ये जर शिक्षण दिलं तर आदिवासी समाजाचा मुलगा बोलू लागेल, शिकू लागेल, आणि म्हणून ते त्या भाषेमध्ये त्यांना शिक्षण, पूर्ण शिक्षण नाही आहे आपल्या माहितीसाठी सांगतो, 1 ते 4 वर्गापर्यंत जे शिक्षण आहे ते शिक्षण त्यांना त्या भाषेमध्ये राहावं असा एक शासनाचा आणि काही समाज कार्यकर्त्याचा एक निर्णय म्हणण्यापेक्षा एक त्यांनी विचार ठेवला आणि त्या पद्धतीने ते कामं सुरू झालं. आपलं म्हणणं एकदम बरोबर आहे की मराठी शाळा बंद होत आणि इंग्रजी शाळा वाढत आहे. आजकाल हो सर. कुठलाही व्यक्ती जर असेल तर आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेमध्येच टाकतो. हो सर. योगा नाही हो, मायबापाला इंग्रजी योगा नाही, पण तो इंग्रजी शाळेमध्येच टाकतो आणि फॅड होऊन गेलेला आहे इंग्रजी मध्ये जाण्याचं. आपल्या मातृभाषेत जर आपण शिक्षण घेतलं तर ते शिक्षण कधी उत्तम राहील. आम्ही इंग्रजी भाषेमध्ये शिक्षण घेऊ नये असं म्हणणार नाही, कारण इंग्रजी भाषा एक काय म्हणतो वाघींचं दूध आहे असं म्हणू आपण. तर ते इंग्रजी भाषा तर आवश्यकच आहे, परंतु आम्हाला आपली भाषा सुद्धा येणं तेवढंच आवश्यक आहे की जेवढी तुम्हाला इंग्रजी भाषा येणं आवश्यक आहे. नक्कीच. बोलताना तुम्ही मराठीमध्ये घरी बोलता ना, हो सर. इंग्रजीमध्ये शिक्षण कसं काय घेतात, तुम्हाला समजते का पूर्ण इंग्रजी? त्याचप्रमाणे जर दोन्ही भाषा असेल, दोन्ही भाषेचा विद्यार्थी जर लहान बालक जर त्यांनी आपल्या आदिवासी भाषेमध्ये शिक्षण घेतलं तर योग्य राहील असं मला वाटतं. अगदी बरोबर सर. थँक्यू सर. नमस्कार उईके सर. उईके सर. मॅडम नमस्कार. मॅडम नमस्कार. हा, खूप छान तुम्ही विषय मांडला. पण मला एक प्रश्न असा आहे की ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत एक स्पेशल असं डिपार्टमेंट आहे जे या संदर्भामध्ये काम करत आहे. तर त्याच्याबद्दलच थोडंसं आपल्याला सांगता येईल का, म्हणजे नक्की काय करतात? कारण मी ज्या वेळेला धुळे जिल्ह्यामध्ये काम करत होती त्यावेळेला तिथल्या बोली भाषेचे सगळे जे गाणे आहेत किंवा जे काही बोलणं आहे त्याचे रेकॉर्डिंग करून त्याच्याबद्दलचं अवेअरनेस आणि जनरेशन ते करत होते. तर आजच्या स्थितीला याच्या बाबत काही होत आहे का? म्हणजे या संदर्भातल्या शासनाच्या काय भूमिका आहे? म्हणजे जे डिपार्टमेंट त्याच्यासाठी खास त्यांनी एस्टॅब्लिश केलं आहे ते यामध्ये फंक्शन करत नाही आहे का? म्हणजे याच्याबद्दलचा थोडासा उलगडा, म्हणजे आपल्याला त्या दरबारी आपल्याला काही करावं लागेल का, म्हणजे सोशल ऍक्शन किंवा अशा संदर्भात? हॅलो. हो मॅडम. हा. पुराणिक मॅडम एक चांगला क्वेश्चन आपण इथे विचारला, धन्यवाद देतो आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळ्या आदिवासी भाषेच्या संदर्भामध्ये एक त्यांनी भाषाचा प्रकल्प राबवणं सुरू केला आणि भाषाच्या प्रकल्पामध्ये ज्या काही भाषा आहेत आदिवासींच्या त्या भाषेवर ऑलरेडी सरकारने एक पुन्हा येथे तुम्हाला कल्पना असेल आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण विभाग हा विभाग काम करत आहे. त्यांनी या संदर्भात अनेक ठिकाणी चर्चासत्र सुद्धा आयोजित केलेले होते आणि करत आहे. या संदर्भात त्यांनी वेगवेगळ्या भाषेतील पुस्तकांची सुद्धा निर्मिती केलेली आहे आणि त्या माध्यमाने भाषेचा जो प्रश्न आहे जो विद्यार्थ्यांना भेडसावत होता तो दूर कसा करायचा असा एक प्रयत्न महाराष्ट्र शासन करत आहे. दुसरा विषय असा आहे की वेगवेगळ्या आपण जे म्हटलं की शासनाच्या काही योजना आहेत का, शासनाच्या तर अनेक योजना आहेत आदिवासी मुलांच्या संदर्भात म्हणा किंवा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात म्हणा किंवा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भात म्हणा की त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या संदर्भात, आणि याच्या संदर्भात ते नेहमीच कार्यक्रमाच्या माध्यमाने लोकांना आपल्या ज्या काही
बाबी आहे त्या त्यांच्या नजरेत आणून देण्याचा नेहमी प्रयत्न करीत असतात. यासाठी वेगवेगळ्या मान्यवरांचं, वेगवेगळ्या विचारवंतांचं सुद्धा त्यांना बोलावून त्यांचे विचार ऐकून, म्हणजे आता जास्त लांबचं न बोलता मी काल परवाच माझी ATCनी मला बोलावलं होतं, मी बसलो होतो, चर्चा केली. ॲडिशनल कमिशनर ऑफ ट्रायबल आणि त्यांच्यासमोर मी एक विषय सुद्धा ठेवला होता की सर, आपण जो 9 ऑगस्टचा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे, त्या कार्यक्रमामध्ये आदिवासी समाजामध्ये ज्या काही व्यक्ती आहेत, जे काही उच्च शिक्षित आहेत, त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेतले. त्या शिक्षण घेतलेल्या लोकांना, विद्यार्थ्यांना जर आपण बोलवून एक चर्चासत्र जर आपण आयोजित केलं नागपूरच्या लेव्हलवर, तर हे चांगलं होईल आणि भविष्यामध्ये आपल्याला काहीतरी योजना राबवता येईल. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की त्यांनी लगेच ते मान्य केलं आणि मान्य करून ॲक्च्युली त्यांनी मलाच बोलवलं होतं. मी त्यांना सांगितलं होतं का ऑलरेडी मी तिरपुडे कॉलेजला माझा वेळ मी दिलेला आहे, तर माझं काही येणं होणार नाही. म्हणून मी नागपूर विभागाचे, नागपूर विद्यापीठाचे RTM, नागपूर विद्यापीठाचे इतिहास विभागाचे जे प्राध्यापक आहेत डॉक्टर श्याम कोरेटी यांचं नाव मी सुचवलं. डॉक्टर हलामी ज्यांनी USA म्हणून USAच्या विद्यापीठात त्यांनी शिकवलं, अशा 2-4 लोकांचे मी त्यांना नाव दिलं. तर सर, अशा लोकांचे तुम्ही, त्या लोकांचे अनुभव आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या लोकांना जर आपण दिलं तर त्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना कुठं ना कुठे प्रेरणा मिळेल आणि त्याच्या प्रेरणेमुळे विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वळू शकेल. तर असा कार्यक्रम आपण राबवावा. आपण बाकी तर राबवतोच आहे, तर शिक्षणाचा विषय असा राबवावा असं एक त्यांना मी कळवलं. आणि आज सायंकाळी 5 वाजता त्यांनी तो कार्यक्रमसुद्धा ठेवलेला. मला त्यांनी तिथे निमंत्रितसुद्धा केलेलं आहे का आज तुम्ही त्या कार्यक्रमाला या. म्हणजे एक वक्ता नाही, पण एक प्रेक्षक म्हणून मी तिथे जाणार आहोत. अशा प्रकारचं शासनसुद्धा आपल्या स्तरावर एक कार्यक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करतात. थँक्यू सर. थँक्यू सर. हा, वाघमारे सर, रमेश वाघमारे सर, आपलं काय प्रश्न? सर्वांना मूल निवासी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सरांनी गोंडी भाषेचा इतिहास खूपच समर्पक पद्धतीनं मांडला आहे आणि मला याबाबत म्हणजे पहिल्यांदाच एवढं खोलात माहिती मिळाली. आणि परतवाडा विभागामध्ये चिखलदरा आणि तिकडे धुळे, साक्री, नंदुरबार, धडगाव या वेगवेगळ्या ठिकाणी मी ज्यावेळेस वेगवेगळ्या संशोधन प्रकल्पाच्या निमित्तानं प्रवास केला, त्यावेळेस मला शाळेत विशेषतः मुलांची उपस्थिती खूपच कमी आढळली. आदिवासी शाळांमध्ये आश्रमशाळांच्या इतक्या सुंदर इमारती आहेत, परंतु मुलं त्याची उपस्थिती नाही. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांना जो शिकवणारा शिक्षक आहे तो स्थानिक भाषिक नाहीये त्यांच्यातला तो नसल्यामुळे मुलांना ते काय शिकवतात ते समजत नाही, असा एक सूर होता तिथल्या स्थानिक लोकांचा. तर त्याबाबत आपल्याला काही ध्येय धोरणं ठरवता येतील का? आणि दुसरी एक महत्वाची बातमी मला सांगायला आवडेल की टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जे आहे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, तर इथल्या काही युवकांनी एकलव्य ग्रुप स्थापन केलेला आहे. आणि ते व्हॉलेंटियर असे जे आदिवासी भागातील विद्यार्थी आहेत ज्यांना चांगल्या उच्च दर्जाच्या शिक्षणाच्या ज्या संस्था आहेत तिथे प्रवेश घेता येईल, यासाठी हे युवक सातत्याने धडपडत आहेत. आणि यावर्षी एक आनंदाची बाब अशी आहे की टाटा इन्स्टिट्यूट सारख्या भारतातील नामांकित शिक्षण संस्थेत यावर्षी 70 मुलांचे प्रवेश झालेले आहेत. तसेच अजिम प्रेमजी जी शिक्षण संस्था आहे ती सुद्धा या विषयावर
लक्ष देते आणि या वर्षी त्यांनी वर्धा चंद्रपूर ह्या भागातील 2 आदिवासी मुलांचा पूर्ण उच्च शिक्षणाचा खर्च त्यांनी स्वीकारलाय आणि त्यांना बँगलोर येथील त्यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश दिलेला आहे. तर हे मला कॉन्ट्रीब्युट करायचं होतं की आपल्याला या दिशेनं पुढे जाणं गरजेचं आहे. भाषेचा तर प्रश्न आहेच, परंतु हे जी मुलं आहेत शिक्षणापासून वंचित राहतात, तर त्यांना जर आपण अशी चांगले प्लॅटफॉर्म जर उपलब्ध करून दिले आणि शासनाने सुद्धा त्यांच्यासाठी विशेष अशा स्कॉलरशिप जर दिल्या, तर नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकेल भविष्यामध्ये. धन्यवाद सर. आणि तेच आहे. हा वाघमारे सर. हो सर. हा तर ते ऑलरेडी तो एक प्रॉब्लेम आहेच, कारण की लँग्वेज बॅरियर येतोच कितीही जरी हे केलं तरी, कारण की शिक्षक वेगळे अपॉइंट राहतात वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि तो भाग राहणारच आहे. आता जसं उईके सरांनी सांगितलं की जे प्रोसेस आहे भाषेचे जे काही वर्कशॉप्स आहे त्याबद्दल पुस्तक आहे त्यांची ते प्रोसेस सुरू आहे. आणि जे आपलं पुण्याची जी संस्था आहे प्रशिक्षण संस्था TRTI तेही याच्यात पाऊल पुढे करत आहे आणि त्याचा बेनिफिट आपल्याला नक्की होईल, आज नाही पण येणाऱ्या काळात. थँक्यू. सर एकच मी बोलू का सर? एक मिनिट. बोला ना. हा मला वाटते आता जी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आहे विके सर. हो मॅडम. ओके सर. नवीन एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये आता जे नवीन ड्राफ्ट बिल आलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलं आहे की प्रायमरी लेवलचं शिक्षण हे त्यांच्या मातृभाषेतच द्यावं, जेणेकरून त्यांना पुढे त्यांचा विकास चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. या दृष्टीने आपल्याला म्हणजे आदिवासींच्या संदर्भात तर हा विषय जास्त आपल्याला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, कारण अनेक बोलीभाषा आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे बोलीभाषा असल्यामुळे त्या ठिकाणी येणाऱ्या ज्या काही त्यांच्या मातृभाषेतनं जे शिक्षण द्यायचं आहे या संदर्भात आपल्या समोर सगळ्यांसमोर एक मोठं ऑर्गनायझेशन कडनं किंवा आणखीन याच्याकडनं काही प्रयत्न होत आहेत का, किंवा म्हणजे या बाबतीत आपल्याला. हॅलो. एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भामध्ये आपण जे म्हटलं की बा मातृभाषेमध्ये शिक्षण द्यायला पाहिजे आणि एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये तर त्यांनी आता म्हटलं का तुम्ही मातृभाषेत शिक्षण द्यायचं, पण संघटनेच्या आणि अनेक संघटना अनेक सामाजिक कार्यकर्ते यांची सुद्धा अनेक दिवसापासून ही मागणी होती की बा जे व्यक्ती आहे, ज्या समाजाची व्यक्ती आहे, ज्या भागात राहते त्या भागामध्ये बोलणाऱ्या ज्या काही भाषा आहेत त्या भाषेमध्येच त्यांचं वालं शिक्षण देण्यात यावं, त्यांच्या भाषेतच ते शिकवण्यात यावं. अशा प्रकारच्या अनेक चळवळी सुद्धा यापूर्वी सुद्धा राबवण्यात आलेल्या आहेत. सामाजिक चळवळी म्हणा किंवा शासनाने सुद्धा अशी चळवळ म्हणजे शासनाने सुद्धा या स्तरावर विचार विनिमय करणं सुरू केलेला आहे. सामाजिक चळवळीच्या संदर्भात तिथे आपण चर्चा करू तर याच्यामध्ये अनेक सामाजिक संस्था अशा आहेत की ज्यांनी अनेक चर्चासत्रामध्ये म्हणा किंवा शिष्टमंडळ म्हणा किंवा आंदोलनाद्वारे म्हणा की आमच्या मुलांना तुम्ही स्थानिक भाषेमध्ये शिक्षण द्या, शिकवा, अशा चळवळी त्यांनी राबवलेल्या आहेत. आणि अतिशयोक्ती तर बोलणार नाही, परंतु मला असं वाटतं याच्यामध्ये की ह्या आदिवासींच्या अनेक ज्या चळवळी ज्या झालेल्या आहेत किंवा त्यांच्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण द्यावं, आणि याचा तो परिपाक सुद्धा असा होऊ शकते की त्यांनी बा एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मातृभाषेमध्ये शिक्षण द्यावं असं त्यांनी उल्लेख केलेला असेल गव्हर्नमेंट. थँक्यू मॅम. थँक्यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपने सभी की डाउट्स क्लियर किए, क्वेश्चंस के आंसर दिए. आई सपोज सभी को उनके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे.
Now I invite our chairperson, Dr. Masram sir, to enlighten us about today's webinar. पाण्याची आवश्यकता नाही. थोड़ा पीछे ले लो. ठीक. प्राध्यापक मधुकर उइकेंचं अतिशय अभ्यासपूर्ण और काफ़ी बारीकियों को टच करता हुआ जो विषय जो था कि इंडिजिनस लैंग्वेज के बारे में, उसके काफ़ी अनछुए पहलुओं को प्राध्यापक मधुकर उइके जी ने यहाँ पर हमारे सामने रखा. हमसे भी ज़्यादा यदि इसकी उपयोगिता जो ध्यान में आ रही है कि वो हमारे विद्यार्थियों के लिए ये विषय काफ़ी नया था, और उससे भी इंडिजिनस पॉपुलेशन के बारे में जानकारियाँ, या तो जैसा उइके सर ने कहा कि काफ़ी गलत तरह से उनको जिस तरह से पेश किया जा रहा है, तो वो सही जानकारी उन तक पहुंचाने का एक काफ़ी अच्छा प्रयास उइके सर ने हमारे सामने रखा है. हम देखते हैं कि ये जो दिन है कि जागतिक मूल निवासी दिवस, इसको सेलिब्रेट करने का जो 1994 से इसकी जो शुरुआत हुई है, ये हम देखते हैं कि इन इंडिजिनस पीपल्स को, यानी जो मूल निवासी है, उनको मुख्य धारा में किस तरह से लाया जाए, ये एक मुख्य प्रयास इस दिन को मनाने के पीछे रहा है. और जैसा ध्रुव सर ने भी बताया कि हर साल एक नई नई थीम ये दी जाती है, जिसके आधार पर ये मूल निवासी जो है, आदिवासी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का एक भरकस प्रयास ये विश्व तौर पर किया जाता है. और मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष होता है कि बहुत गिने चुने कुछ महाविद्यालय होंगे कि जो ये दिन मनाते हैं. यानी संगठनाओं के तौर पर काफ़ी संगठनाएं काम कर रही हैं. उइके सर तो इन दिनों काफ़ी बिजी पर्सनैलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जाना, अपने विचार व्यक्त करना संगठनाओं के माध्यम से काफ़ी कुछ चल रहा है. लेकिन एक महाविद्यालय इस विषय को लेकर के, और ये भी इस साल नहीं, हम गत कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं. अभी गजबे सर ने का परिचय देते हुए कहा कि 2006 में एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, ट्राइबल पॉलिसी आई थी. उस पर भी हमारा कॉलेज ये पहला था कि जिस पॉलिसी के ऊपर महाविद्यालय ने एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था. 2013 में ICICI स्पॉन्सर्ड, इनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो इश्यूज हैं उस पर काफ़ी एक बड़ा नेशनल सेमिनार हमारे महाविद्यालय ने लिया. और इस साल अभी ये जो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स, ये एक मनाने के लिए हमने प्राध्यापक मधुकर उइके जी को बुलाया, और ऐसे एक थीम के ऊपर कि जो अनछुआ है. हम बार बार कहते हैं कि यह एक हमारे संस्कृति का अभिन्न भाग है, लैंग्वेज. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यानी पढ़ने लिखने के बाद, आगे बढ़ने के बाद बहुत से लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने में भी शर्म आती है. ठीक है, कभी वो हमारी जो भाषा है उसको बोलने की कोशिश नहीं करते हैं. लेकिन कुछ कुछ कम्युनिटी में हम देखते हैं कि पर्पजली, यानी फैमिली में अपनी बोली भाषा, घर से बाहर निकलने के बाद अपने रीजनल भाषा, और नेशनल तौर पर जाने के बाद हिंदी या तो इंग्लिश, इस तरह का ये क्लासिफिकेशन हम लैंग्वेज के बारे में देखते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस विषय पर हमने आज ये नेशनल वेबिनार रखा है, तो वहाँ पर आदिवासियों की भाषाओं के बारे में, उसके संवर्धन के लिए जो छुटपुट प्रयास अभी जो उइके जी ने बताए जो किए जा रहे हैं,
वो उतने भरकस नहीं है, उसमें और भी काफ़ी कुछ होना बाकी है। अभी जो उल्लेख है कि वेरियर एल्विन जो मध्य भारत में जो ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन इन्होंने आदिवासी संस्कृति पर इतना बड़ा संशोधन किया हुआ आपको दिखाई देता है। आगे जाकर के इस मध्य भारत की यानी जो गोंडवन एरिया है वहाँ पर वो इतने घुल मिल गए कि उन्होंने उसी बस्तर के एक लड़की से शादी तक उन्होंने की और उस संस्कृति को उन्होंने एडॉप्ट किया। इनका एक संशोधन भाषाओं के भी बारे में, भले ही उनका जो लिटरेचर है वो इंग्लिश में है, रसेल हीरालाल जी का जो लिटरेचर वो भी हमारे सामने है। उसके बाद बी.डी. शर्मा जी ने जो एक सिविल सर्विसेज का ऑफिसर होने के बावजूद भी इन अनुसूचित जनजातियों में काफ़ी बड़ा उन्होंने काम किया। जी.एस. घुरिये, इनका एक काफ़ी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। ढेबर जो एक प्लानिंग कमीशन के मेंबर और जिन्होंने ढेबर कमीशन का एक काफ़ी अच्छा रिपोर्ट जहाँ पर लैंग्वेज पर भी एक सेक्शन दिया गया है। तो इन सारे लोगों ने ये भाषा पर काफ़ी कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की, लेकिन इतने साल हो जाने के बावजूद भी भाषाओं का जिस तरह से ये आगे बढ़नी थी वो नहीं हो पाई। ये भी हमें मान करके चलना काफ़ी आवश्यक है। हम जब कभी इन भाषाओं पर चर्चा करते हैं तो जैसा वीके सर ने हमें बताया कि बहुत कुछ काम होना बाकी है और हम एक त्रिपुरे समाज कार्य महाविद्यालय से ये कोशिश आए दिन करने की कोशिश जरूर करेंगे कि जहाँ पर ये मूल निवासियों की भाषा उसके संवर्धन के लिए क्या क्या संशोधन चल रहे हैं, इसके लिए एक सर्व समावेशक एक चर्चा सत्र कॉलेज में रखने की एक पूरी कोशिश हम जरूर करेंगे। हमारा भी जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन है यानी इसमें संशोधन होना बहुत आवश्यक है। जैसा भी एक नाम यहाँ पर लिया गया कि मोतीरावण कंगाले, डॉक्टर मोतीरावण कंगाले, इनकी पूरी लाइफ ये गोंडी भाषा के संवर्धन के लिए, संशोधन के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी और काफ़ी मुझे लगता 14 से 15 किताबें उन्होंने इस पर लिखी। जो कहीं हिम्मत नहीं कर पाया वो काम डॉक्टर कंगाली जी ने किया हुआ हमें ध्यान में आता है। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने एक डिक्शनरी भी निकाली है। ये डिक्शनरी का उपयोग ये भाषा संवर्धन के लिए या तो भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ हम देखते हैं। जो छुटपुट अभी अलग अलग पॉकेट्स में काम चल रहा है, मैं भी वही शेयर कर रहा था कि अनुताई वाघ करके काफ़ी बड़ी एक समाज कार्यकर्ती जो मुरबाड़ करके एक आदिवासी क्षेत्र है, तो ऐसे आदिवासी क्षेत्र में सदियों से वो काम कर रहे हैं। वहाँ पर वो स्कूल चलाते हैं और ये निसर्ग शिक्षा का एक काफ़ी अच्छा एक मॉडल मुरबाड़ का एक काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने भाषा का जो बैरियर है, ये अनरिटन लैंग्वेज कहा जाता है आदिवासियों की भाषा, उसकी रिटन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ संस्कृतियों के माध्यम से, कुछ मनोरंजन के माध्यम से ये भाषा को आगे ले जाने की कोशिश हम देखते हैं कि वीके जी ने जो चित्र भाषा का उल्लेख किया वो काफ़ी अहम है, जिसका उल्लेख मोहनजोदड़ो के इसमें भी आया हुआ हम देखते हैं। चित्र भाषा का एक अच्छा उदाहरण हम सभी को जानकारी होगा जो वारली चित्र है, ठीक है। आज तो इतना प्रचलन है इस वारली चित्रों का, साड़ियों पर चित्रों के लाखों में चित्र बेचे जाते हैं वारली चित्र, लेकिन ये चित्र भर नहीं, तो इसमें आदिवासी संस्कृति की एक कहानी बुनी होती है, ठीक है। और ये कहानियाँ उनके फैमिली लाइफ, उनके सोशल लाइफ, उनके नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड है ये सारे चित्र। यदि वो चित्रों पर हम ध्यान से देखे जाए तो सिर्फ यानी घर में सजाने के लिए चित्र नहीं है, लेकिन ये संस्कृति की कहानी है, दो पीढ़ियों को जोड़ने की ये कहानी है। तो इन चित्रों के माध्यम से
ये आदिवासी संस्कृति को आगे ले जाने की काफी भरकस कोशिश ये वारली चित्रों के माध्यम से हुई है। मध्य प्रदेश में आपको शायद पता होगा कि जहाँ पर श्रृंगार चित्र या तो मूर्तियां वो मंदिरों में रखी गई है, ठीक है, और विश्व भर से वो मंदिर देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर वो श्रृंगारिक सारे चित्रित किए गए हैं। अभी बहुत से लोग उसको काफी अलग नजर से देखते हैं, लेकिन वो एक हमारे संस्कृति का जो छिपा हुआ एक भाग है उसको उजागर करने की एक कोशिश है। तो चित्र भाषा की जो बात हम कर रहे हैं, तो ये चित्र भाषा इस माध्यम से काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और आए दिन हम देखेंगे कुछ सालों में जो भी संगठनों के माध्यम से जो काम चल रहा है कि मूल निवासियों के भाषाओं पर ये जो काम चल रहे हैं, इसमें यशस्विता जरूर आएगी। और इतना जो कोशिश जोर शोर से चल रही है, भले यह आवश्यक है कि उसमें शासन के दरबार में उसको एक आश्रय मिलना बहुत आवश्यक है। और ये कहीं जाकर के इन संगठनों के संघर्ष के माध्यम से ही शायद यशस्विता मिल जाए। TRTI ने जो पहल की है कि 1 से 4 साल तक के किताबें उन्होंने निकालने के बाद जो एजुकेशन फील्ड में जो बदलाव हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि एक अनुभव मैंने किया है जो हेमल कसा का जो स्कूल है बाबा आमटे जी का, तो वहाँ के बच्चे काफ़ी कुछ डॉक्टर हो चुके हैं, काफ़ी बच्चे इंजीनियर हो रहे हैं, समाज में वो कार्य कर रहे हैं। उनका भी पूरी तरह से फोकस यही था कि जब तक इन बच्चों को उनके भाषा में प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलता तब तक ये बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया है कि वो उनकी जो भाषा है उन भाषाओं को देवनागरी में उन्होंने ट्रांसलेट किया है, माड़िया में, ठीक है ना, देवनागरी में उसको ट्रांसलेट करके वो किताबें उन्होंने छापी हैं। लेकिन ये जो भी गोंडी भाषा पर अभी संशोधन चल रहा है, काम चल रहा है, और इसका भी नतीजा फ्यूचर में काफ़ी अच्छा निकलेगा ऐसा हम मानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के जो नेशनल वेबिनार के कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक नरेश धुर्वे, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस दिन को मनाने के लिए उन्होंने पहल की, और प्राध्यापक मधुकर उइके जिनका इस विषय पर काफ़ी अच्छा काम, जो हमने उनका जो वक्तव्य सुना, इसके आधार पर हमें ध्यान में भी आया कि लैंग्वेज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को उन्होंने दी। आज डॉक्टर गजबे सर, इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अच्छी कोशिश की। सचिन सर, डॉक्टर कबीराज, सिस्टर प्रभा, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन काफ़ी सही ढंग से किया। हमारे SRC के अध्यक्ष शिवम निखात और अभिषेक, और टेक्निकल सपोर्ट के लिए दिनेश, और हमारे बाकी क्लास के विद्यार्थी, और जितने भी एक पार्टिसिपेंट करके यहाँ पर सम्मिलित हुए, और कुछ प्रश्न जो पूछे गए वो काफ़ी प्रातिनिधिक थे कि जो हरेक के मन के थे, लेकिन वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसके आधार पर कुछ नया नॉलेज हम सभी को मिला है। तो उइके सर को मैं तहे दिल से, हमारे भले ही वो तिरपुड़े कॉलेज के हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका साथ हमें हर समय मिलता है। उनको एक बार और से धन्यवाद दे करके, सभी को त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद दे करके मैं अपने वाणी को to propose a vote of thanks.
थैंक्स प्रभा सिस्टर। आज 9 अगस्त संपूर्ण विश्व में जागतिक मूल निवासी दिन मना रहे हैं और हम भी हमारे त्रिपुरी समाजकार्य महाविद्यालय की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस विषय को हम आगे ले जाते हुए आज हमने एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है जिसका विषय है इंडिजिनियस पीपल्स लैंग्वेज एंड देयर प्रॉब्लम्स। सही मायने में अगर हम देखा जाए आज के दौर में तो हमारे देश को आज़ादी मिलकर आज 75 वर्ष के आसपास का समय बीत रहा है, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी है उनकी परिस्थिति, उनकी समस्या जो हो वही के वहीं पे है। आज जो आदिवासी समुदाय है, जो मूल निवासी लोग हैं, वो आज भी दुर्गम क्षेत्र में वास्तव्य कर रहे हैं। जो लोग आज शिक्षा से, रोजगार से, उपेक्षा से भरे हुए, अच्छा स्वास्थ्य उन लोगों को नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनकी परवरिश अच्छी तरह से नहीं हो रही है। शासन का धोरण इस बारे में अभी तक उदासीन है। शासन की कुछ नीतियां भी नहीं बन रही है कि इन लोगों को किस तरह से विकास के प्रवाह में लाना चाहिए। इस सारी बातों को आगे रखते हुए यूनो ने 9 अगस्त 1982 को एक कार्यदल का गठन किया था और इस कार्यदल ने अपनी बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया था, बहुत सारे विचार विमर्श किए थे और फिर 1994 से 9 अगस्त को जागतिक विश्व मूल निवासी दिन मनाना तब से शुरू हो गया था। अभी इस तरह में हमारे देश में बहुत सारे आदिवासी जनजातियां हैं जो पर्वतों के आसपास, जो दुर्गम क्षेत्र में, जो वनों में वास्तव्य करते हैं, लेकिन वो अभी तक विकास के प्रवाह में नहीं आ चुके हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इनके विकास के लिए बाधा बन चुके हैं और उनमें से महत्वपूर्ण विषय है उनकी भाषा। यह हम देखते हैं हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पर, हर 100 किलोमीटर भाषा बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है कि हर 50-100 किलोमीटर पर हमारी संस्कृति बदलती रहती है, संस्कृति बदलती, हमारे विचार बदलते रहते हैं। लेकिन आदिवासियों की, वनवासियों की या मूल निवासियों की जो संस्कृति होती है उसमें प्रकृति की झलक दिखाई देती है, उसमें उनके संस्कार दिखाई देते हैं, उसमें उनके जो धर्म है, धर्म से जुड़े उनके जो देव है, उनके जो त्योहार है वो वहाँ पे जुड़े होते हैं। इसलिए इनकी जो दैनंदिनी होती है वो बहुत ही आम होती है, बहुत ही सादी होती है और बहुत ही सरल होती है। आज देश को आज़ादी मिलकर हम अगर 21वीं सदी में सक्षम भारत होने का सपना अगर देख रहे हैं और इस सक्षम भारत बनाने के समय में अगर हमारे देश के मूल निवासी अगर समस्या से ग्रस्त है तो हमें फिर से एक बार सोचना होगा कि हम वास्तव में हमारे देश को 2021 में या 21वीं सदी में सक्षम भारत बना सकेंगे या नहीं। आज हमने इस विषय पर एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है और इस नेशनल वेबिनार में हमें मार्गदर्शन करने रिसोर्स पर्सन के तौर पर हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर करके, लाइब्रेरियन करके जिन्होंने काम किया है वो है डॉक्टर मधुकर उइके सर। वो यहाँ पे हमें मार्गदर्शन करने उपस्थित हो चुके हैं। उन्होंने अच्छे विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन किया है, बहुत सारी बातों से उन्होंने रूबरू किया है। वैसे तो हमें पता था और सर के मार्गदर्शन में भी हमें ये पता चला कि सर का समय बहुत कीमती है, क्योंकि आज का दिन शायद सर हम लोगों को नहीं मिलते, इसलिए हम लोगों ने 15 दिन पहले सर की डेट बुक कर चुकी थी कि शायद वो हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपलब्ध हो चुके। शायद दिन भर सर के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से सर किसी न किसी विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। सर ने आज के इस सत्र में, आज के इस वेबिनार में आदिवासियों की जनजातियों के इतिहास क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, भाषा किस तरह से उनके विकास के प्रवाहों में बाधा बन रही है और शासन की कौन कौन सी नीतियां बन चुकी है और शासन की तरफ से कौन कौन सी नीतियों की अपेक्षा है, ताकि ये जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, वह विकास के प्रवाह में आने चाहिए। इसलिए सर ने अपना कीमती समय देकर बहुत अच्छे विषयों पर हम लोगों को मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं त्रिपुरी समाजकार्य महाविद्यालय की तरफ से उइके सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य, आज के इस वेबिनार के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मसराम सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने कुछ बातों से हमें यहाँ पे रूबरू करवाया। सर, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब कोई आदिवासी परिवार का व्यक्ति शिक्षित होकर अपने इलाके से शहरी क्षेत्र में जाता है, शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करता है और नौकरी के माध्यम से वो अच्छे पद पर पहुंच जाता है, लेकिन
उसको अपनी भाषा का गर्व होता है, उसका अभिमान होता है, वो अपनी भाषा जानता है, पहचानता है और बोलता भी। लेकिन जब उसके परिवार के जो बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके बच्चे इस भाषा से अनजान रहते हैं। तो शायद शुरुआत यहीं से भी होनी चाहिए कि भाषा का अगर हमें भाषा का संरक्षण करना है या भाषा को बढ़ावा देना है, या जो प्राथमिक शिक्षा है स्कूल के बच्चों को वो अगर भाषा उनकी अगर मातृभाषा में देना है, तो जो लोग अपने परिवार के साथ शहरों में वास्तव्य करते हैं, अच्छे पद पर है, उन्होंने भी अपने बच्चों को इस मातृभाषा का प्रशिक्षण देना चाहिए। मातृभाषा में उन्होंने अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। मैं डॉक्टर दीपक मसराम सर का भी यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस वेबिनार के कन्वेनर जिन्होंने अच्छा विषय रख के इस वेबिनार का आयोजन किया, नरेश दुर्वे सर, मैं उनका भी यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक गजबे सर, डॉक्टर कबीराज सर, इस कार्यक्रम का जिन्होंने कंपेयरिंग किया, प्रभा टोपो सिस्टर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिन्होंने यहाँ पे कुछ सवाल पूछे, हरीश चकोले सर, पुरानिक मैडम, रमेश वाघमारे सर, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यह इनके सवाल देखकर यह पता चला कि ये आदिवासी के संगठनों से या आदिवासी के लिए जो कार्य चल रहे हैं या उनके लिए जो मूवमेंट चल रही है उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस वेबिनार में जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे टेक्निकल असिस्टेंट दिनेश मंडपे, शिवम निखार, अभिषेक टेगोर ने, भाग्यश्री बंजारी, दीपांकर, इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष, वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मसराम सर, इनकी अनुमति से आज का यह वेबिनार यहीं पे समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। उसके पहले हम इस कार्यक्रम की समारोह राष्ट्र गीत से करेंगे, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वह अपनी जगह खड़े हो जाए। एक साथ सावधान होंगे, सावधान। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय जय। धन्यवाद।